आप समझ सकते हैं कि आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान है। सबका योगदान है, पर अफसोस कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हमें कम से कम अब यह समझना होगा। That's why in 2018 when it was 75th year of the formation of the first government of INA, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी को उस INA के जो भी जीवित सैनिक थे उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में, रिपब्लिक डे परेड में पूरे सम्मान के साथ हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कांग्रेस हो या लेफ्ट गैंग, हमेशा बीजेपी और संघ पर कई बड़े आरोप लगाती रही है। आजादी को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि बीजेपी और संघ का कोई भी योगदान देश की आजादी में नहीं था। लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पूरा वीडियो आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से कई बड़े आरोप कांग्रेस लगाती आई। कांग्रेस का यह कहना है कि आजादी की लड़ाई उनके नेताओं ने लड़ी है, लेकिन इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी रोचक कहानी बताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से सिर्फ ये जो आजादी की लड़ाई थी ये उस वक्त नहीं लड़ी गई जब देश आजाद हुआ। इसके पीछे कितनी बड़ी सेना थी और उस सेना को कौन लीड कर रहा था, इस बारे में कई बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी को, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है देश की आजादी को लेकर। सोने की चिड़िया भी होंगे और जगत गुरु भी होंगे, बट we got independence on 15th of August 1947, but this land is blessed that the first flag of independent India was hoisted on 14th of April 1944 in Manipur and Kohima by Azad Hind Fauj led by Netaji Subhash Chandra Bose. And moreover, as Nand Kumar ji was saying, decolonization of minds requires, because if we talk about the first independent government of the country, then definitely a reference of the exile government led by Netaji Subhash Chandra Bose, which was formed in 1943, in October 1943, should have the mention, because that was the first independent government of India. Subsequently, we formed the government in 1947. And with due respect to everybody, I do not want to demean anybody, but the government was not formed on 15th of August 47. It was formed on 2nd of September 1946 under the cabinet mission plan. And the swearing in was done by Lord Mountbatten. And showing allegiance to whom? To British Crown. Most of the people have somehow slipped up this fact that the British Parliament has decided that India will get independent not on 15th of August 47. The due date was 30th of June 1948. They have preponed it. That's a different story, why they preponed it. And you must be remembering that even after 47, Mountbatten remained the Viceroy of India till 30th of June 1948. Why? Because the predetermined date was 30th of June 1948, then why it was preponed? On this 75th year of independence, we must know the fact that one of the prominent reasons was after the Second World War, when the trial of soldiers of Indian National Army, Azad Hind Fauj, was going in Delhi, then the then British Commander-in-Chief, his name was Claude McKinley. He has written a letter to then Viceroy on 24th of November 1945 that the Indian soldiers of the British Army are having such type of nationalist ambition building up, and they are in a very much strong reaction on the proceedings which is going against the INA soldiers, that we cannot rely on them. Their loyalty to British Crown has been severely damaged by Subhash Chandra Bose INA. He has written on 24th of November 1945, and in January 1946 the cabinet mission plan was approved. Then he writes a second letter on 12th of February 1946 that the information chief of the armed forces of the British forces, he says, now the information which I am getting, it is showing
now they cannot be relied upon even for some few days. हम चंद दिनों के लिए भी उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं. और फिर एक गोपनीय केबल भेजा गया टू ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स कि वो अपनी फैमिली को एज अर्ली एज पॉसिबल बॉम्बे और कराची पहुंचाएं, बट गुपचुप तरीके से, सो दैट इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनका इवैक्यूएशन तेजी के साथ हो सके. 12 फरवरी को लेटर लिखते हैं और 18 फरवरी को इंडियन नेवी में का प्राइसिंग होती है. एंड विद इन फ्यू डेज फ्रॉम बॉम्बे टू कलकत्ता टू कराची 20,000 सेलर्स खड़े हो जाते हैं और ब्रिटिश 100 से ऊपर नेवल शिप्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय द नेवी सोल्जर्स. और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती है. देन दे आस्क द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस रूलर्स लीडर्स. तब सरदार पटेल और नेहरू जी बात करते हैं, तब सेटलमेंट होता. और बस फरवरी एंड में somehow they manage the situation and in March they decide that the cabinet mission plan will execute the government and an interim government will be formed in 2nd of September 1946 under the leadership of Jawaharlal Nehru. तो अब आप समझ सकते हैं कि आजादी में किसका कितना बड़ा योगदान है. सबका योगदान है. पर अफसोस कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी हमें कम से कम अब यह समझना होगा. दैट्स व्हाई इन 2018 व्हेन इट वाज 75th ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ आईएनए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी को उस आईएनए के जो भी जीवित सैनिक थे उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में, रिपब्लिक डे परेड में पूरे सम्मान के साथ हिस्सा लिया. यह फैक्ट मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताने का प्रयास किया कि कभी कभी आजादी के बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो बिल्कुल ग्लेरिंग हैं. इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता हो, या जिसने हिस्ट्री तो छोड़िए जनरल नॉलेज भी पढ़ी हो तो उसे न पता हो कि सितंबर 46 में कैबिनेट मिशन प्लान में गवर्नमेंट बनी थी और माउंटबेटन 30 जून 1948 तक वाइसरॉय रहे थे. और 2 साल तक उसके बाद भी भारत की आर्मी का चीफ भी ब्रिटिश रहे थे, जनरल रॉय ब्यूचर. फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है और वो प्योर इंडियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है. और ये बात कहने वाला वो अखबार है जिसने हम पे हुकूमत की थी, उस देश का अखबार है. इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है. तो ये एकदम एक एब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. अब यहीं से तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये देश 47 में बना, आजाद हुआ या अस्तित्व में आया. ये देश 1947 से एग्जिस्टेंस में नहीं आया. इस देश का एग्जिस्टेंस ऐसा भी नहीं कि एक व्यवस्था के तहत है. आज पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जितने कंट्री या नेशन की डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन ऑफ द नेशन इज कि इट इज वन पीस ऑफ लैंड which is controlled by one political authority. One territory controlled by one political authority is considered as nation, which is called politico-territorial nation. पर भारत वैसा देश नहीं है. भारत में पॉलिटिकल टेरिटरी किसी के भी हाथ में हो, परंतु आपको पूरे देश से जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता. उदाहरण के लिए इस गुवाहाटी की धरती पर जब आप मां कामाख्या के मंदिर में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो उतनी ही श्रद्धा आपकी वैष्णो देवी से भी जुड़ती है, उतनी ही श्रद्धा मुंबा देवी से भी जुड़ती है, उतने ही भारत के मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ती है, उतनी ही कोलकाता की काली मां से भी जुड़ती है, उतनी ही कन्याकुमारी से जुड़ती है, उतनी ही त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ती है. और इतना ही नहीं, उतना ही ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में हिंगलाज माता के साथ भी जुड़ जाती है. तो सुना आपने भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, जिन्होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बता दिया कि आजादी में किसकी कितनी भूमिका थी. वो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जहां पर उन्होंने ये बयान दिया था. बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा.